I hope this program has become beneficial for all of us. This is an honor for me to introduce our resource person of the day, Professor Ashit Kadir sir. He is great personality in the field of Unani. Professor Ashit Kadir is presently Chairperson Department of Kulyat, Faculty of Unani Medicine, Aligarh Muslim University. He has more than 20 years of academic, administrative, and clinical experience. He completed several projects, and one of them is critical edition of Ikhtiarat Kazmi and its Urdu translation, a project of 3.4 lakhs sponsored by Department of ISM, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi. He is such a great author. He has done more than 50 research papers, 16 books are published under his name. More than 10 chapters in different books are published by him. He did various books reviews. He has been invited as a resource person in more than 100 national and international seminars. He was invited as a guest speaker in first international conference of alternative medicine organized by Sharjah Medical District, Ministry of Health at Sharjah, United Arab Emirates. He will be delivering lecture on concept of swim research. Now I request Professor Ashar Nadeem sir to come on the dais and enlighten us with his immense knowledge. Please. First of all, I would like to pay my thanks to the organizers of this conference, particularly the chairperson of the Department of Mahidullah, Professor Vanu Sanuka, Tatul Azanta. I am very fortunate that he has taught me the UG David, PG David too. Secondly, I am very thankful to my colleagues, elder colleagues, Dr. Atul Azanta, Ahmed Sahab, Yasir Sahab, and what's your name? Mishda. I'm thankful to all of them to invite me here. I'm not the outsider. I'm the host, part of this CLA program. In the beginning, I would like to say something. This topic was given to me that I have to speak on this. So you can say that it is a very, it is only a word, Suevita, but in depth it is a ocean. The second name and the Marathi of Suevita जो है क्या है मरज, पूरा मरज. Suevita का नाम ही जो है वो पूरा मरज है, डिजीज है, जिससे हम मैनेज करते हैं. उस पर आज हमें देखना है. दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि because you are another learned person more than me. Most of the professors are there. I am very humble to them that they are here to listen to me. Otherwise, they are very learned and situated by their own. The second thing is that you are all the teachers, isn't it? So, what are the problems we have to face in the classroom? कि मेरे मुताबिक जो भी बातें अभी कही गई हैं कि ये है वो है वो सब ऐसे ही बातें तो सिर्फ इसलिए हो गया कि मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी ये वक्त आ जाएगा कि हमारे बारे में भी कुछ कहा जाएगा. बस इतनी बात है कि आप चरागों का कसीदा पढ़िए. अब चरागों का कसीदा पढ़िए, बस में आपका कोई नहीं. तो ये हमारी महरूमी है कि लर्नेड और हमारे जो असातिज़ा थे उससे हम महरूम हैं. वो उन्होंने हमें पढ़ाया और बड़ी जल्दी ये चीज़ आ गई कि हमारे बारे में ये बातें होने लगी. हम तो अभी तालिब इल्म हैं, बहुत से लोगों ने हमें पढ़ाया वो है नहीं. तो इस
इसमें वो बातें मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो गुजरात है और ज़्यादातर मेरा जो है मेट्रोलॉजी गुजरात के ढूंढने में जितनी चीज़ें आती हैं उसी से ताल्लुक़ करता है और मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं बल्कि जो मेरी एक जस्तजू का एक मैदान कार है तो ये कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है फर्स्ट ईयर BMS होता है नॉट देयर टू थ्रो माय नॉलेज टू द वर्ल्ड मुझे वर्ल्ड को नहीं बताना है यूनानी मेडिसिन क्या है मुझे यूरोप को नहीं बताना किसी और को नहीं बताना फर्स्ट ऑफ फाइनल ड्यूटी ऑफ माय इज कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में आ रहा है और वो उम्र तबियत पढ़ रहा है तो उसकी समझ में आ जाए कि उम्र तबियत इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड में क्या चीज़ है बस वो समझ में आ जाए उसकी तो ये मेरी जस्तजू है इसमें मैं लगा रहता हूँ और उसी के ताल्लुक से लगे रहते हैं बीच में मोहब्बत नामे आ जाते हैं तो वो कनेक्ट मैंने किया है और अपने कॉलेज था और उसमें बोलना था था तो ये दूसरी बात एक बात आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये वो टॉपिक्स होंगे जो क्लास के अंदर आपको फेस करनी है बिकॉज यू आर द टीचर ऑफ माहियुल उमरात एंड यू आर गोइंग टू टीच द माहियुल वहाँ जाके क्या हो रहा है बच्चा क्या कर रहा है सिलेबस क्या बोल रहा है वहाँ पे कौन सी टर्म आ रही है और आप क्या उसमें हो रहे हैं ना बीच में तो उसके ताल्लुक से जो है वी आर ऑल द टीचर्स के हमें वो चीज़ देखना है और अब आप आगे की चीज़ें आ रही हैं because I was the chairman of the committee formed by NCISM to study the history and I was the member of the team who assisted the Umri Talim. तो उसमें प्रोग्राम आउटकम भी है कोर्स आउटकम भी है कि बताया जाता है जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो टच करना कर रहा है उसको जाके प्रोग्राम और उसका रिव्यू का एटीट्यूड क्या है तो टर्म वाइज वहाँ लिखना पड़ेगा टर्म वाइज अगर आपकी टर्म है तो उसी को लिखना पड़ेगा वो काउंटर नहीं मानते हैं वो इंग्लिश टर्म नहीं मानते कहेंगे नहीं आप उसको चाहे उसको वेरीफाई कर दीजिए आप इसी में बोलो पहली बात दूसरी बात ये कि उसमें वो रिपीटिशन नहीं होगा मिसाल के तौर पर अगर मैंने मिजाज आधा पढ़ा दिया और फिर अनाटमी में आ जाके दोबारा उसमें मिजाज आधा पढ़ा है तो वो कंप्यूटर उसको वो नहीं कर देगा नहीं ये हो चुका कुछ और पढ़ा है ना तीसरी बात क्या है कि उन्होंने जो पीरियड रखे सर ने परसों बताया था प्रैक्टिकल पीरियड ज़्यादा रखिए और थ्योरी पीरियड कम रखिए तो वी आर रेडी टू start our practical ये देखिए कि the aim of the physician क्या है वही है बिल्कुल जो हम बिल्कुल इसको देखते थे बिल्कुल दिन की जो तारीख है हमारी डिफाइंड तारीख है तो उसमें मुताला तो सभी करते हैं लेकिन हमारा है सेहत की हिफाजत और इज़ाला मरज़ तो दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है चाहे वो सेहत की हिफाजत करे इज़ाला मर्ज़ करे दैट इज द क्यूरेटिव मेथड प्रिवेंटिव मेथड बिफोर दैट वी हैव टू डायग्नोज दैट ये तो पता चले ना तशखीस करके अब जो कि हमारे पास पेशेंट आता है तो हम एक्सरसाइज करते हैं मर्ज़ पर लेकिन अब जमाना जो ये भी कॉल कर रहा है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज सेहत को रिजर्व करना मर्ज़ ही तो आता ना हमारे पास तो इसलिए हमने मर्ज़ किया हुआ है अदरवाइज वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट सेहत भी हमें आइडेंटिफाई करनी है और जितने भी फिजिशियन थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं इंक्लूडिंग मी कुछ भी पढ़ाएं उनका अल्टीमेट और इमीडिएट जो टारगेट है वो तशख़ीस व तजवीज़ है ये आप समझ मुआलजात वाले का इमीडिएट टारगेट है माहियुल अमराज वाले का कुलियात वाले का अल्टीमेट टारगेट वी आर द फीडर टू देम एक बस मिसाल समझ लीजिए फुटबॉल के मैच में तीन चीज होती है स्ट्राइकर होता है मिडफील्डर होता है बैक सारे गोल स्ट्राइकर के नाम पे होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं सारा तशखीस जो है मुआलजात वाले के नाम पे हम मुआलजात में हम मुआलजात में तुम क्या हो हम तो मुआलजात में हम तो ओपीडी कर रहे बट मिडफील्डर को और अगर डिफेंडर को निकाल दीजिए तो जितने गोल हो तो खुद पता चल जाएगा कितने गोल हों डिफेंडर का काम अटैकर से विदाउट नॉट टैकल करके फीड करना है सेंटर फील्ड को और फिर उसको जो है सपोर्ट देना है तब स्ट्राइक पे गोल होगा हमारे पास डिफेंडर को अहमियत नहीं दी जाती मिडफील्डर को अहमियत दी जाती तो स्ट्राइकर के पास गेट ही नहीं है तो वो करेगा क्या समझ में आ गया तो वी आर ऑल वन वी आर अंडर वन अम्ब्रेला और एक हमारी टीम है उसको हमें देखना पड़ेगा अभी देखिए कि दीज आर द वन ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ द ग्रीस ना प्रिजर्व्ड इन द इस्तांबुल म्यूजियम उसमें आप देखिए कि a physician is observing a patient अब आप देखिए हाथों से मुशाहिदा वो कर रहा है यही उसका टारगेट था
तशखीस कर रहा है वो, उसके बाद सेकंड मरहले पे तजवीज़ करेंगे, उसूल तशखीस। और ये दोनों उसूल तशखीस जो है वो डिपेंड करते हैं असबाब व अलामात, ठीक है। तो पूरी दिल को आप बस चार पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए, चाहे 70-100 किताबें हो, तशखीस व तजवीज़, अलामात व असबाब व अलामात। बस अब असबाब शुरू हुए तबीयत से, असबाब मुक़द्दिमा उसको रखा है, तबीयत पैदा करने वाले असबाब, ये अलग असबाब है, आगे आएगा उसमें। उसके बाद असबाब व अलामात की कई I have listed so many concepts of disease. There are about more than 41, 42. This is the definitions of the disease from the very beginning till now. Egyptian period से देखेंगे अब तक जो disease का तस्वुर था वो क्या था, तो आपको पता चल जाएगा as per the era is changed हो रहा है। एक सबसे पहले असबाब, इसमें मैंने टिक लगा दी है। सबसे पहला जो था वो बेबीलोनियन था, इजिप्शियन था, आपने देखा होगा इसके अंदर ये कहा जाता था कि इट इज द प्रिमिटिव मैन ascribed disease to the evil influence of the malignant soul, host devil etc. था ना कि भूत प्रेत होते हैं, याद आ गया? वो असबाब थे उस जमाने में कि भाई इसको करो तो पूजा पाठ करो, मंदिरों में जाओ, उसका एक तस्वीर था। उसके बाद some religious belief थे that many diseases were sent as punishment के तौर पे था, तो इसका भी एक कॉज था कि पनिशमेंट था, तो ठीक है जब वो चीज थी तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी तो मैथमेटिक्स होगा ना, याद रखिए आप। उसके बाद आ जाता है, मैं स्किप कर रहा हूँ, उसके बाद आता है हिप्पोक्रेट्स ने कॉज ढूंढा मेटलिस्टिक बेस पर, और उसने ह्यूमरल थ्योरी पेश की, उसने इम्बैलेंस को रखा। उसके बाद गैलेस ने उसके अंदर और बढ़ा दिया कि इम्बैलेंस भी होता है, लेकिन इम्बैलेंस के साथ साथ उनका इन्फ्लुएंस जो होता है, फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ह्यूमर्स का, वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ये दोनों जो है ह्यूमर्स के ऊपर फॉर्म करते हैं। कुलियात कानून जब कुलियात कानून में देखिए क्या बता रहा है डिजीज के बारे में, और ये देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है, कोई यूनानी और उर्दू नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है। describe disease as an abnormal state of human body, उसने स्टेट कहा है, पूरी एक स्टेट है हमारी रियासत, because of which directly और indirectly, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलवास्ता और बिला वास्ता, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अगर some disturbance in the functioning of the body, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट फंक्शनिंग हो, अगर उससे बॉडी हमारी मुतासिर हो रही है एज ए होल, तो वो डिजीज है। उसके बाद आते हम देखिए फाउंड रिजेम्बलेंस है इब्न सीना के कानून से। आप देखिए डॉनेंस मेडिकल डिक्शनरी क्या कहती है, इन जनरल एनी डिपार्चर फ्रॉम ए स्टेट ऑफ हेल्थ, वहीं से स्टेट उठाया जाएगा। इब्न सीना ने जो हालत का जिक्र किया है वहीं से स्टेट उठाई, स्टेट ऑफ हेल्थ। And illness or sickness, more especially a definite morbid process having a characteristic train of symptoms, symptomatic logically अगर उसमें आ जाते हैं तब वो डिजीज होती है, जब सिम्टम अराइज हो जाते हैं, अलामाती के तौर पे वो ज़वाहिर में आ जाती है, तो it may affect the whole body or any of its part, ठीक है। डॉक्टर्स डिक्शनरी की उसमें भी हम जब इब्न सीना की देखेंगे तो वही वाली आ जाता है हालत सानिसा, और ये वही चीज है जो कि आगे बताऊंगा कि किस वजह से डिवाइड करते हैं। तो ये डिजीज का जो मेटालिस्टिक फिनोमेना है वो हिप्पोक्रेट्स से शुरू हुआ, और उसके अंदर जो कॉजेस, और देखिए असबाब और अलामात के नीचे लिखा हुआ है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट इज द बेसिक फैक्टर ऑफ द साइंटिफिक ओरिएंटेशन। साइंटिफिक माइंड हमेशा कॉज और उसका इफेक्ट मालूम करता है कि इसका कॉज क्या है और इसका इफेक्ट क्या है। और आगे देखिए इसमें एक बात बताऊं, ये मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन, तो एक्सपर्ट नहीं, मुझे मैं सब डेली के होते थे मेरे साथ होती, तो उसमें मत जाइएगा कि अगर वहाँ पे जरा सा ऊपर नीचे फिर जरा गलत हो गया, मैं समझता हूँ ट्रांसलेशन वाला हिकमत तबीब, ये मैं आगे बताऊंगा। हिकमत तबीब होता ही वो है जो कि फिजिकल ओरिएंटेशन हो जाए, तो मेंटलिस्टिक हो। तो ये चीज
हमने देखी कि ये कैसे चल रहा है शुरू से, लेकिन आप देखिए कि वो एक मैन है, उसको वो ऑब्जर्व कर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो प्रॉब्लम है जो हमें फेस होती है, जरा इसको समझिए। पास्ट को जरूर समझिए, और ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं कदीम इल्मुल अमराज। किताबों में देखा होगा ना, कदीम इल्मुल अमराज। अभी कदीम क्या चीज होती है, क्लास में जब आप आए 21वीं सेंचुरी में, तो कदीम इल्मुल अमराज कौन पढ़ने बैठ रहा है? और आप पहले कह दोगे कदीम इल्मुल अमराज तो आजकल वो पुराना 500 का जो नोट चलता था ना 2017 से पहले, वो कोई भी नहीं लेगा। और आप कितना ही लेते रहो, अब जरा किसी को 500 वाला आप देके आ रहा हो किसी बच्चे के हाथ में, वो खुश होगा, कहेगा पता नहीं कौन है, उससे तो ना देना बेटा। ओके, उसके बाद प्रेजेंट को आप बिलो में रखिए, जो मॉडर्न बुक्स ऑफ पैथोलॉजी, मॉडर्न बुक्स ऑफ जो हम पढ़ाते हैं पैथोलॉजी से, जो हम पढ़ाते हैं जाके, मैं तो लंबरास हमारा जो अलॉट होता है और पढ़ाते ये हैं जाके, और उसमें पूछ लेते हैं कि भाई क्या है, वहां पे टर्म जो आती है वो कदीम इल्मुल अमराज है। वी आर मिसिंग द ग्रीन रीजन। जब ब्लू को और येलो को मिलाते हैं तो ग्रीन कलर होता है। और आप ये देखिए कि ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो प्रेजेंट हमारा जो प्रेजेंट नॉलेज है वो पास से फ्री नहीं है बिल्कुल, उसी का एक्सेलरेशन है, उसी का अपग्रेडेशन, उसी के रूल्स हैं। जैसे मैंने एक डिसीजन की डेफिनेशन को थोड़ा सा डॉटर्स डेफिनेशन से मैच किया है, स्टेट भी वही है, हालत भी वही है, वहां हालत साल से आगे जाके बताया उसने क्या कहते हैं, एज होल पार्टी और ऑडियंस पार्ट। तो ये ग्रीन रीजन जो हमें जो है वो नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ उमराज बट पूरे तबिया कुलिया उम्मिया सब में ये ग्रीन फील्ड रीजन देखिए एकदम मैच करता है हमारा। तो पास्ट और प्रेजेंट को हमें दो चीजें तो नजर आती हैं बस, येलो एंड ब्लू, ग्रीन हम मिस करते हैं। पर यही हमारा टारगेट है एज ए रिसर्चर, एज ए टीचर, एज ए कम्युनिटी, कि हम ग्रीन को कपलिंग कर दें ग्रीन की, और उस टर्म से लग जाएगी, जो टर्म कोई भी हो जबान से मत जाएगी, लेकिन आपको कपलिंग करने के लिए उसमें नॉट अप तो करना पड़ेगा। तो जब आप उसकी पुरानी उसको जानेंगे नहीं, इस्तेलाह को नहीं जानेंगे, पुराने उसमें क्या चीज है उसको नहीं जानेंगे, तो आप मॉडल से कपलिंग कैसे करेंगे? तो ये जो ग्रीन रीजन है, ये एक मैंने रेफरेंस दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फाइल नंबर है, आप देखिए F2722/63 आ रहा है सर, ये 1962 के अंदर when the health minister of India was Dr. Sushila Nair, 1962 में she was the health minister. She was graduated from America at that time in the public health sector. सिर्फ public health sector की उसके बाद डिग्री थी, वहाँ पर आकर उसको health minister बनाया। She was very strict. उसने कहा कि we are going to support only allopathic system, and if alternative system wants to live in India, they have to prove that what will be the nature of their treatment, होगा क्या, कैरेक्टर आपका क्या होगा, तब हम आपको रजिस्टर करेंगे। ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त आयुर्वेदा और यूनानी जो तो बहुत दोनों मेजर पार्ट हमारे थे, उनकी मीटिंग उसने बुलाई, समझ गए? और मीटिंग बुलाने के बाद आयुर्वेद वालों ने, क्योंकि रेफरेंस है इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल खालिस शुद्ध हैं, हम शुद्ध हैं, हम किसी और को अशुद्ध नहीं होंगे, बस हमारा शुद्ध मामला है, बात में तक और यही चीज हमारी रहेगी, इसी पे हम करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल शुद्ध हैं, हमारी पेथी बिल्कुल शुद्ध है, हमारे जो वैदास है उसमें शुद्ध है, जो चीज रखी उसी से हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी मीटिंग में हकीम अब्दुल हमीद प्रेसिडेंशियल से 6 लोग जो हमारे थे माशाल्लाह, उन्होंने क्या काम करा। हम तो साइंटिफिक लोग हैं, हमारी तिब्बी यूनानी साइंटिफिक ओरिएंटेशन है, जो नई चीज आती है वो हमेशा इसके अंदर होता है, इंकॉर्पोरेशन एडिशन और डिलीशन हमेशा होता है। हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा कायम रहेंगे, लेकिन जो नए नए तरीके आते रहेंगे, नई नई सुविधा आती रहेंगी, उसको हम अडॉप्ट करते रहें। और उसके रेफरेंस में उन्होंने मजलिसी तहकीकात इल्मी का हवाला दिया, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1926। उसमें पहले ही तजदीद और तहकीक हो चुकी थी, और फिजियोलॉजी को जो है उम्र तबिया से तदकीक का काम शुरू हो चुका था 1926 में। And that मजलिसी तहकीकात इल्मी वाज फाउंड बाय हकीम अजमल खान, बट उनका 1927 में वो गलत फरमा गए और उसकी वजह से उनकी काम नहीं आगे बढ़ सका। उन्होंने उसका हवाला दिया कि ये जो नए जो उलूम है, तशरीह है और फिजियोलॉजी है,
ये बिल्कुल वही चीज है कि वी आर गोइंग टू अडॉप्ट इट ऑन आवर टर्म्स। लेकिन और अगर एक लाइन आ गई ना कि पानी एक उनसुर वहीद है, तो उसको रट जरूर लीजिए, लिख जरूर लीजिए, पास जरूर जाएंगे, लेकिन जब आप उसको जो है ना डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना, पानी एक उनसुर वहीद है, तो कर नहीं पाएंगे। एक तो लफ्ज आ गया पानी, एक उनसुर आ गया, वहीद आ गया, यानी आ गई, पानी कहां से आ गया, और दूसरे वहीद है, उनसुर को कहां ले जाके आप रखेंगे? जब तक समझेंगे नहीं तो तहकीक क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन आप कर ही नहीं पाएंगे उसका। ठीक है, आज भी आप वाटर देख लीजिए, पानी वैसा पानी होता है, और वो पानी जो कि सेलुलर लेवल पर जाके, है ना, एक अपना जो रोल अदा करता है, तो उन दोनों में फर्क है। एक को जौहर कहा, एक को वाजिबुल वजूद कहा, एक को मुमकिनुल वजूद कहा। भाई इसलिए बता रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में जो मंतिक फलसफा पढ़ाया गया वो कोई डेकोरेटिव पीस नहीं था, वो इसीलिए था ताकि आपकी इसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आए, इसलिए मंतिक फलसफा और इल्म हयात पढ़ाया गया। कॉस्मिक लॉजिक एंड फिलॉसफी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कॉस्मिक इल्म हयात, इल्म हयात वो चीज है जिसको आलम फलक कहते हैं, जिसको आलम असबाब कहते हैं, जिसको आलम मादा कहते हैं, ये वो चीज है। अब उसको ये बता दिया गया तिब के ताल्लुक से, इल्म तिब और बेसिक्स ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कुलियात है, वहां पर आकर आप सबसे पहले जाएंगे तो उलूम की तारीफ की गई है मंतिक के पहले में। उलूम अक़लिया कहा गया, उलूम अक़लिया को फिर 3 हिस्सों में बांटा गया। नंबर 1 इल्म तबी, जिसमें तबी आगे उसमें मैं बता दूंगा, तो हिकमत, उसको हिकमत कहा गया। अब आप इसको अप्लाई करेंगे, किस हिकमत से आप करेंगे, तो एक हिकमत तालीमी, एक हिकमत तबी और एक हिकमत इलाही। हिकमत तालीमी है कि दो चीज आपको सीखनी है, समझनी है, वो आपने बता दिया, समझा दिया, अपना नाम रख दिया, आपका नाम रख दिया, एक का नाम रख दिया सैफुल इस्लाम, दिया सैफुल इस्लाम, लेकिन अब नायब इस्लाम की साइड तो क्या करेंगे, लेकिन उसका नाम हो गया ना, प्रैक्टिकल उसमें ज्यादा वो नहीं होता। नाम रख दिया सैफुल इस्लाम, खयाबान फलाना, तैयार सर सैयद, तैयार सर सैयद जमाना हो गया, तो तैयार सर सैयद से कंसेप्ट आता है, अच्छा ये चमन है, उनका जगह है, ये चीज अलग है। इन प्रैक्टिकल वो चीज सर सैयद की इसमें फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, वो तभी वो दिखाना पड़ेगा। तो फिजिकल एविडेंस में वो तभी कहलाता है। तो अब देखिए तीनों चीजें आपको देखना पड़ेंगी एज ए टीचर और एज ए रिसर्चर। अगर इल्म तिब का पहला सफा खोलना है, सरेबत पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, चाहे वो अरबिक में हो या पर्शियन में हो या उर्दू में हो या उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। टर्मिनोलॉजी में जब तक आपकी कमांड नहीं होगी एतराक हो गया। एतराक किसे कहते हैं? बात करना। एतराक के माने कोई आग तो जल नहीं रही है, वो कौन सी हरकत में आएगा? हरकत एनिया में आएगा, वजिया में आएगा, कमिया में आएगा, कैफिया में आएगा। एतराक तो तब्दीली तो है, इसलिए वहां आगे जाके होगा। तो एक तो टर्मिनोलॉजी पे कमांड होना चाहिए, दूसरा द हिस्ट्री। अभी मैंने जो स्क्रिप्ट पेश की वो इसलिए पेश की, कौन से इरा में कौन सी चीज, ये लाइन किस वक्त लिखी गई, कौन से वसाइल थे वहां पर, कौन से जराए थे वहां पर, अब हमारे पास कौन से जराए हैं। लिमिटेशन एंड एक्सटेंशन दोनों पता होना चाहिए उसका। और कॉस्मिक फिलॉसफी, जिसको कहते हैं कायनात का सुगरा और कुबरा, और बदले इंसान को दिखाने का पूरी कायनात का एक छोटा यूनिट है, और जो उसूल और ज़वाबित कॉज एंड इफेक्ट के पूरी से बाहर लगते हैं वो इस तरह, बिकॉज़ इट इज अ यूनिट, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड, तो ये भी एक पार्ट है। तो इस पर मिजाज की थ्योरी कोई नहीं। अगर अभी बंद हो जाए एसी तो हमें गर्मी लगती है, और अभी ठीक है तो हमारा टेम्परामेंट जो है पूरे जो हो रहा है ना, तो ये जो हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है बातिया और खारजा से, ये हमारी चीज है। अब देखिए वही चीज आ गई हिकमत तभी, आपको पता चल जाना चाहिए कि वी डिस्कस विद द फिजिकल वर्ल्ड। अब आपके जहन से सब निकल जाना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई वो करता है, कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि 15वीं सेंचुरी और 13वीं सेंचुरी के बाद लिखी गई, उसमें थोड़ा सा इस्लामिक फिलोसफर्स ने भी उसके अंदर चीज डाली है, उसमें कुछ रूहानी तसव्वुरात उसमें पेश किए हैं, ठीक है, लेकिन उनका फिर तरीका भी उन्होंने तदारुकी इस्लामी बताया है, रूहानी अमराज। तो रूह को थोड़ा सा वैसा कर दिया है कि उसका कल्ब बेदखूर है, और ये है मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर वो टोटल पीरियड है। जैसे आप यहाँ पर दो कंसेप्ट है के साथ रूह जो है वो मेटाफिजिकल कुछ चीज है, जो कुछ कहते थे नो, जब एक बार ये बात तय हो गई पूरे तबिया में कि ये मादी चीज है और ये फिजिकल चीज है, अब उसे मेटाफिजिकल में नहीं ले जाना, और हर चीज तय करते हुए चलिएगा, हर पे अव्वल पे खूब बहस करिए, जो चीज तय हो जाए
कि अब इसको हम ऐसे मानेंगे, तो फिर वैसे ही बात होगी आगे, तभी बात बनेगी कि इसका लेवल ये समझ के नहीं कि ये भी और ये भी ऐसा कुछ। अब देखिए मादे की दो किस्में कसीफ और लतीफ बनाई गई। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ एक तो ये है कि जो टर्म जहां इस्तेमाल हो गई हम उसके अलावा उसको दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये टर्म सिर्फ अखलाक में इस्तेमाल करनी है, ये बात है। फिल्ते लतीफ, फिल्ते कसीफ, फिल्ते लतीफ, फिल्ते, अरे भाई ये मादे के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने मादा लिखा है। यानी हवा के अंदर भी इस्तेमाल होगी, हवाए लतीफ, हवाए कसीफ, फिल्ते लतीफ, फिल्ते कसीफ, आदाए लतीफ, आदाए कसीफ। तो टर्म का जब हम मायने समझ लेंगे तो हम कहां कहां उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खिल्त के ताल्लुक से उसको मजबूत कर दिया तो खिल्त नहीं रह गया। ये मादे से मुराद है। मादा क्या था, उसके पैरामीटर्स क्या थे, वो जो शुरू में दे रखे हैं किताबों में, इदराक, इदराक मतलब परसेप्शन। तो इंसान जो महसूस करता है, जो परसेप्ट करता है, उसी पे तो फीड अप, जो फीड होगा उसी पे तो फिर आउटकम होगा ना। तो 5 चीजें जब भी है, 5 चीजें जब भी कौन कौन सी, एंड, उस्न, अनफ, लिसान और जिस्म। ये 5 हमारे पास चीजें थी जिनसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका नाम मुशाहिदा और तजर्बा है। तो पहले मुशाहिदा और तजर्बा इन्हीं चीजों से होता था पहले। अब आप देखिए माइकल अमराज में जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो बोलोबाज होगा, चाहे कोई चीज होगा, उसका इन्हिसार मुंह पे होगा, दिमाग पे होगा, रंग पे होगा, बलगम में गैर तबई खुलू होगा। यानी इन्हीं तमाम चीजों पर है, क्योंकि हमारे पास ये 5 चीजें। उस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें पीएच आ जाए, उस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर जो है वो आपका विस्कोसिटी जो है उसके अंदर आ जाए, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि उसको जो है जो इडियोपैथिक जो उस वक्त था आज मुनकशिफ हो गया कि सेल्स होते हैं उनकी शेप ये होती है और ये बैक्टीरिया इस शेप के होते हैं। तो उस वक्त तो नहीं था ना। तो उस वक्त उन्होंने जो मुशाहिदा किया तो उस लेवल से उन किताबों को पढ़ना कि उसका लेवल क्या है, और उसमें पाछड़ी कोई चीज नहीं है। असिस्टेंट साहब आती चली गई, असिस्टेंट आती चली गई। मेरे पास कुव्वत गोयाई उतनी है जितनी पहले थी, पहले वाले इंसान के पास। अब मैं माइक पे आ गया, ये एक्सपेंड हो गया। ये तो असिस्ट करने वाली चीज है, लेकिन जो मैं बोलूंगा वही तो आपको सुनाई देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं कुछ और सुनाई। ये स्पेक्ट्स हैं, ये मेरे असिस्ट कर रहे हैं। बीनाई मेरी जब भी उतनी थी, बीनाई अब भी है, तो ये मेरे एस्पेक्ट्स हैं। जब ये चश्मा नहीं था तो कुरान पाक इतने बड़े होते थे, मोटे मोटे हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे। अब इतना मोटा कोई छापने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे हो गए क्योंकि हो गया। तो वक्त के साथ इतना बड़ा कुरान कोई ऐसा नहीं था कि कोई उनको शाहकार पैदा करना था कि भाई इतने इतने बड़े कुरान मोटे मोटे लिखने हैं और अब छोटा छोटा लिखना है। वक्त के साथ चीज चलती है। तो उस वक्त जब एस्पेक्ट्स नहीं थे आलमगीर के दौर में, तो उनका भी कितना बड़ा कुरान लिखा था ताकि वो दूसरे आदमी को भी दिख जाए, जो के नजर का जो शिकार हो गया। ये 3 चीजें समझ में आ गई। ये किसके लिए, ये तिब के लिए नहीं है। हर इल्म के माहिर को ये 3 चीजें होंगी, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे, चाहे वो तिब बनना चाहे। जब बच्चा हमारी क्लास में आता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का माहिर होकर आता है ना, 10 प्लस 2 रिक्वायरमेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश तो होती है उसके पास। ऐसी अतिबा के वक्त जब 8th to 12th सेंचुरी है, उससे पहले जब तिब की तरफ तभी रागिब होता था तो मंतिक, फलसफा, लिसान, इल्म हय्यत, लुगत ये सब होता था ना। उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन में ये चीज होती थी कि इसको आता है, तब वो करता है। अब ये जो है एरिस्टोटेलियन का जो है ये जो चीज बनती कैसे, इल्म हय्यत का मसला है। एक चीज बनती कैसे, वजूद कैसे कैसे, परसेप्शन में वो चीज आती कैसे। परसेप्शन में कोई भी चीज आ जाए हमारे लिए, चाहे वो आंख से दिख जाए, नाक से सुन ले, जिल्द से महसूस कर ले, कान से उसमें आवाज पड़ जाए हमारे, या देख लें। वो चीज जब परसेप्शन में आती है तो उसके वजूद के शराइत हैं। उस शराइत में कौन सी चीजें, सबसे पहले वो एक चीज सबक मादा होना चाहिए। और मादे की तारीफ ही ये है। आजकल मैटर की तारीफ लोगों ने क्या की है, मैटर इज द थिंग व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज अ मास। ठीक है, लेकिन उस वक्त का मामला ये था मास वास नहीं, हमें जो चीज महसूस हो जाए। तो महसूस होने में गर्मी पता चलती है ना, धूप की गर्मी, रोशनी है ना, रोशनी तो पता चल रही। इस वजह से इन्होंने इसको भी महसूसात में रखा है। कोई लाइट को कोई तोड़ता है क्या, कितने किलो है, कितना बनाना है, पता चला एक बल्ब जला दिया तो और दब गए, दूसरा जला दिया अरे बहुत दब गए। ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह से उन्होंने मादे की डेफिनेशन ये की, तो हमें या तो कोई बिलवास्ता या बिलावास्ता मेरा मामला है कि इसका कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। धूप आ रही है तो सोर्स इसका सामने होना चाहिए। असबाब सौरिया ये मुनफरिद करने वाले असबाब होते हैं जो एक मादे को दूसरे मादे से अलग करते हैं, नौ बनाते हैं, जिसको मिजाज कहते हैं। तो ये बताना चाह रहा हूं वो कि वहां पर से असबाब मादा उठाया तो हमने क्या उठाया,
वहां से असबाब सौरिया उठाया तो हमने क्या उठाया, वहां से असबाब तमामिया उठाया तो हमने यहाँ क्या उठाया, और असबाब फायदा जब यहाँ से उठाया हमने बेसिक थ्योरी ऑफ बीइंग से, थ्योरी ऑफ बीइंग कहलाती है अरिस्टोटल की, तो हमने क्या उठाया, तो ये उठाया। देखिए आप, इसमें मैंने रेड कलर कर दिया असबाब वजूद को। हमने असबाब वजूद वहां से उठा के ह्यूमन बीइंग के असबाब वजूद उम्र तबिया को वहां से उठाया। तो पहला जो असबाब मादिया था तो उम्र तबिया के चारों वहां आ गए, नहीं आ गए, रेड कलर में अरकान, अखलाक, आज़ा और अरवा, ये चार के चार मेटेरियलिस्टिक हो गए। याद रखेंगे हमेशा, ये चार के चार मेटेरियलिस्टिक हो गए। अब इनकी नौइयत की एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है, उसकी कैफियत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये उन्सुर वहीद है तो कैफियत है, अगर ये मुरक्कब है तो मिजाज है। मिजाज हमेशा मुरक्कब का होगा, दूसरे वहीद की हमेशा कैफियत होगी। कैफियत में हमेशा दो होंगी, फायदा मुनफैदा, ये सब आपको पता ही है, और उनके पेयर बनेंगे। अब उसके बाद असबाब तमामिया जो होते हैं वो होते हैं आउट, बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल नहीं। यानी अगर मैं बताऊंगा आगे इसके अंदर मैं बताऊंगा कि असबाब तमामिया किसको कहते हैं, असबाब तमामिया और दीगर असबाब से में इख्तिलाफ क्या है। तमाम इसको फेल के हिसाब से भी रखा है लोगों ने, जैसे कुआ और अफाल को असबाब तमामिया में रखा है, कुआ और अफाल को। कुव्वतें जो होती हैं वो पावर्स होती हैं, बहुत सी कुव्वतें इसके अंदर मेरे अंदर है, कुछ तो हैं जो फेल को अंजाम दे रही हैं और कुछ हैं वो कभी नहीं कर रही हैं, साइलेंट हैं दोनों अपनी तैयार। तो अगर मैं वहीं पर एक सलाहियत है कुव्वत तनासुलिया, वो जब एक्टिवेट होगी तो नॉइज स्प्रिंग आगे आएगा, लेकिन सब में इशू नहीं होते, नहीं उसको इस्तेमाल कर रहा आदमी, तो उसका तमाम वहीं तक है, और अगर उसको इशू कर दिया तो फिर आगे वाला तमाम उसी तक है, तो नेट रिजल्ट तक जा पाएगा, उसको हम तमामिया कहते हैं। तो कुआ अफाल बिल्कुल एक जैसे, और कुआ जो है और अफाल दोनों जो है गैर मादी चीजें, लेकिन मादे पर दलालत करने वाली चीजें हैं, तो इसलिए मादे के ऊपर हम काम करेंगे, कुआ को उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसके फिर हम नाम रखेंगे, और उसके बाद अफाल का फेल का नाम रखेंगे। यहाँ भी दूसरे असबाब जरूरिया व गैर जरूरिया हैं। ये वो चीजें कि हर किसी चीज के बाद कुलियात में चार चीजों में तकसीम किया गया है। कुलियात को, जो कुलियात दिख को, नंबर 1 असबाब मुखफ़िफ़ा, वो चीज जो कि जिस्म के बनाने में जो असबाब होते हैं उसको कायम करने। जिस्म में भी जो आप देखिए, जिस्म में भी आप चारों हाथ पैर वाला बदन ना समझे, बल्कि हर वो चीज जो कि मादा है, मेटलिस्टिक है, तो सेलुलर लेवल पर भी वो भी जिस्म है, टिश्यू भी जिस्म है, ब्लड सैंपल भी जिस्म है, समझ गए ना। एटीपी का एक फैक्टर वो भी जिस्म है, तमाम के तमाम ये अजसाम है, उसको आप जिस्म समझ। उस जिस्म के ऊपर असबाब जरूरिया वो हैं जो उसको फिर मेंटेन रखते हैं। तो असबाब मुक़व्विमा अलग चीज है और सर्वाइवल के असबाब अलग चीज है, सही। तो इनसाइड द होम जो हमें बनाया वो असबाब दूसरे थे। अब उसके बाद जब कायम कर लिया, अब आप तो रोजाना ग़िज़ा वगैरह लेते हैं, पानी लेते हैं, जो हमें सर्वाइविंग जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो दूसरे हैं। तो असबाब मुक़व्विमा दूसरी चीज हो गई। इसको फिर इसी को हम कहते हैं असबाब, जिसमें सित्ता जरूरिया आते हैं। सित्ता में जरूरिया जो है वो तो मंतकी है, बेसिक है, यूनिवर्सल है, नॉन चेंजेबल है, लेकिन 6 जो है, छठा जो है वो इस्तिहादी है, वो 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो रुक गया आगे, वो बात अलग है, समझ में आ गया, नंबर ऑफ काउंटिंग। और वो उसके बाद उन पर जो इसको इफेक्ट करने वाले असबाब जरूरिया पर, उसको हम कहते हैं गैर जरूरी। किताबों में बस 3 दे रखे हैं, तलाक, हम्माम, रियासत ना, बहुत तादाद है। अभी हम दवा भी इसी में आ जाएगी, ग़िज़ा का वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ग़िज़ा तो आ जाएगी, लेकिन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये जो है असबाब गैर जरूरिया में आ गए। अब इसके अंदर देखिए, अब इज़ाला मरज़ में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा जो टारगेट है तबीब का वो असबाब फायदा और गैर जरूरी आपके, ये समझ लीजिए, असबाब फायदा और गैर जरूरी असबाब तो हो गए बनाने वाले। अगर जरूरी असबाब में कोई नक्स है तो वो असबाब साबिक़ा में आएगा, जैसे कंजेनिटल, जैसे और कोई चीज। तो या तो आप जेनेटिक लेवल पे जाकर उसको चेक करिए, अगर आप वहां तक कर सकते हैं, तो आजकल काम चल रहा है। अगर वहां पर नहीं है, तकलीफ हो गई एक बार और वो चीज फार बन गई, ड्वार्फिज्म आ गया, अगर एक बार है ना, ड्वार्फ हो गया, तो अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अब उसके ताल्लुक से जो असबाब गैर जरूरिया वाली चीजें, उस पर बस आपको करना है कि अब आप उसको कौन सी ऐसी डाइट दें जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको जो है हटाए या सेहत की तरफ ले जाए और मर्ज को दूर रखे। तो सारा जो मामला है वो असबाब गैर जरूरी क्या है,
सिर्फ नाम है ग़िज़ा बस, कि ग़िज़ा के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ग़िज़ा का सोर्स क्या है? ग़िज़ा वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, ग़िज़ा की मिकदार कितनी, ग़िज़ा कहाँ से ली गई, ये सब तमाम जो चीजें हैं जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं, इसको हम कहते हैं असबाबे फायदा, जिसको हम इंग्लिश में बेहतर कह सकते हैं एफिशिएंट कोएफिशिएंट, यानी एफिशिएंट फैक्टर्स हमारे 6 हैं और कोएफिशिएंट इनको कंट्रोल करने वाले दूसरे थे। पानी तो बहुत जरूरी है पानी, लेकिन पानी कौन सा हो, चश्मे का पानी हो, दरिया का पानी, ये कोएफिशिएंट, उसको फिर हम एक्वागार्ड से मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं? समझ में आया नहीं? फिर पता चला नहीं साहब एक्वागार्ड की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ में आए? ये तो ये कोएफिशिएंट फैक्टर्स पे हमारी चीजें सब जाती हैं। अब यहाँ पर मुफरद और बसीत, इसको समझना बहुत जरूरी है कि मुफरद क्या होता है, बसीत क्या होता है। दो टर्म यहाँ आ गई हैं, मुफरद की और बसीत की। यहाँ सिर्फ इतना मान के चलिए कि 9 के लिए तो मिजाज का तरीका होता है, मादे का जो मिजाज होता है वो 9, लेकिन मुफरद जो होता है वो हमेशा जो होता है उसकी मुफरद कमियत से मुताल्लिक होती है, मिकदार से। क्या आप उसको इतना काटते चले जाएं, छोटे से छोटा एंटिटी करते चले जाएं कि वहां पर जाके वो बसीत हो जाए। और मुफरद क्या होता है कि मुफरद दूसरे 9 से मुख्तलिफ हो, यानी आग और पानी अगर अलग अलग है तो वो अपनी इनफरादियत की वजह से, जिसको फर्द फर्द करना कहते हैं, इनफरादियत है, तो कैफियत जो है वो मुनफरिद करती है और कमियत जो है वो क्या करती है, बसीत में लाती है, बसीत। अब उसमें कैफियत में आपकी कमियत भी अगर दोनों मिली हुई है तो फिर वो मुरक्कब हो जाएगा, समझ में? तो ये सेलुलर लेवल पर भी हमें देखना है, जिस वक्त हम करते हैं हिस्टोलॉजिकल फिनोमेना में, कि इसमें कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, इसके असबाब ज़रूरिया क्या है, कोएफिशिएंट फैक्टर कहाँ से आ रहे हैं। इसी वजह से वो फिर आगे जो है वो डेफिनेशन ये भी आएगी कि बैक्टीरिया को अतिबा ने कहाँ रखा था, कहाँ नहीं रखा था, जिस वक्त इनका नहीं था, और उसका कंसेप्ट क्या है आज से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया, देखिए जब हमने बसीत को समझ लिया, वजूद अरकान है ना, तो ये वही चीज है जो मैंने आपसे कहा था कि उसूल को जौहर भी कहते हैं, जौहर कान में तो पढ़ा होगा जौहर। वो दो तरीके का होता है, वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद। वाजिबुल वजूद वो जो होना ही है, वो है ही, चाहे आपको महसूस नहीं हो रहा है, और मुमकिनुल वजूद जो इनप्रैक्टिकल आपके सामने, मुमकिनुल वजूद जो इनप्रैक्टिकल आपके सामने है। इनप्रैक्टिकल आपके सामने सेल है, अरकान नहीं, लेकिन वो मुमकिनुल वजूद है। सेल के अंदर जब जाएंगे तो केमिस्ट्री उसकी वाजिबुल वजूद है, वो जाके उसी से बहस करेगा, चाहे वो लिपिड हो, प्रोटीन हो, एंजाइम्स हो, लेकिन वो जाके वाजिबुल वजूद जो उसका अंसुर होगा वो वही होगा जिसको हम ह्यूमन एलिमेंटोलॉजी या पीरियडिक टेबल जिसको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, आयरन है, कि इसमें कॉपर है, कि जिंक है, कि सोडियम है, समझ लिया या नहीं समझ लिया? तो इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। यहाँ तक ये केमिस्ट्री का मसला है, केमिस्ट्री यहाँ तक हो गई। अब केमिस्ट्री में याद रखिए, इसमें पीरियडिक टेबल में फायर का कोई तस्वुर नहीं है, सिर्फ 3 तरीके का अक़साम है ना, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, यही है ना। तो ये जो मामला है 118 ये केमिस्ट्री की टेबल है। अब यहाँ पर मादा इंसान बना, उसी से केमिस्ट्री की टेबल से मादा आया। आज इल्म हयत वालों ने बता दिया कि ये एलिमेंट है, इतने हैं, इससे अर्थ बनी, उसी से हम भी बने। देखिए बनते हुए चलिए, कायनात सुगरा कुबरा तय हो गया जो कायनात कुबरा में, लेकिन सेलेक्टेड होंगे हमारे इसमें, इससे हमारे पास आई ह्यूमन एलिमेंट होगा। तो पैथोलॉजी में जितने भी जो है नक्स होंगे एलिमेंट्री लेवल पे इससे डील होंगे, जहाँ भाई वहाँ पर आएगा, जैसे जिंक का हो गया, उसका हो गया, कॉर्बन का उसका खत्म हो गया, उसके अंदर अज्जा अव्वलिया जो आएगा वो वाजिबुल वजूद आएगा, लेकिन इन ऑब्जर्वेशन मुमकिनुल वजूद आएगा, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। आई समझ में? तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन उसूल यानी एटम यानी एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल, समझ में आ गया? मॉलिक्यूल तो एंजाइम्स के लेवल पर भी तो मॉलिक्यूलर लेवल तक हम पहुंच जाएंगे, वो भी हमारा वाजिबुल वजूद नहीं बल्कि मुमकिनुल वजूद है, और वो भी मुरक्कब है हमारा, और वो भी एक जिस्म है जिसके ऊपर ये तमाम कोएफिशिएंट और वो वाले कॉजेस लगेंगे। ठीक है,
उसमें ये मैं बताने का मकसद ये कि अगर ये पूरा आपका बेसिक फिलॉसफी आपके सामने, तो आप कोई भी डिजीज को लेके उसको अपने आप डिजाइन कर सकते हैं। रूट आप ही की है, रूट अलग नहीं है, वो हमने ग्रीन एरिया मिस किया हुआ है, रूट आप ही की है, ग्रीन एरिया मिस करा हुआ, ग्रीन मिस में लगा दीजिए, म्यूटेशन पता चल जाएगा, सेल म्यूटेशन हमारे यहाँ कहाँ है। हम क्या करते हैं, सेल म्यूटेशन देखोगे किस किताब में, एक तो प्रॉब्लम ये है होता है ना, भाई देखो सेल म्यूटेशन किसी किताब में है यूनानी की? अरे यार देखो, कोविड कोई यूनानी किताब में रेफरेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा, वो उस वक्त ये चीज थी नहीं जब साहब। तो मैं एक बात बताता हूँ कि रेफरेंसेस ये बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी फेज जो बताने जा रहा हूँ कि हर चीज का आप रेफरेंस अगर किताबों में देखेंगे तो नाकाम होंगे, अगर आप रेफरेंस बेसिक फिलॉसफी में देखेंगे अपनी ही, तो कामयाब होंगे। बेसिक फिलॉसफी में आप कामयाब हो जाएंगे कि वहां पे ये इससे ये लिया था, यहाँ पर इससे ये लिया था, यहाँ पर इससे लिया था, जिसमें शरह जिसको हम कहते हैं, शरह जो लिखी है दीवाने। तो अब देखिए अज्जा अवलिया में दो तरीके के, मुतशाबिहुल अज्जा और मुतशाबिहुल इम्तिजाज। ऊपर से होंगे रिसेम्बलेंस लेकिन मुख्तलिफ मिजाज के हामिल होंगे, और मुतशाबिहुल अज्जा में एक ही मिजाज होगा लेकिन मुरक्कब होगा, लेकिन वो भी मुरक्कब होगा। और जब एक बात एक ही चीज में एक मुरक्कब होता है, एक कुव्वत होती है, तो एक तरीके का फेल साबित करेगा, याद रखिएगा। और जब मुरक्कब होगा तो मुरक्कबुल कुव्वा होगा, वो डिफरेंट तरीके का फेल साबित करेगा, याद। तो एक इंपैक्ट जो है सेल का एक तरीके से नहीं देखेंगे, टिश्यू का दो तरीके से, तीन तरीके से, चार तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखिए ऊपर एक रेड से मैंने आग लिखा हुआ है, यानी आपने बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता दिया, जिसको फायर कहते हैं, इसको हम हीट कहते हैं, जिसका तसव्वुर। अब अनासिर अरबा का क्या मामला है, कहां ढूंढे आग? जब एक बात ये तय हो गई, मैं बिल्कुल फेयर इंसान, बिल्कुल क्लियर, अरे भाई जब एक बात तय हो गई कि जो ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज अ मास, अब इसको कहां रखेंगे, कहां रखेंगे, ओके, या आग को कहां रखेंगे? वही बात थी कि जैसे मैंने अर्ज किया कि जब तक हम टर्मिनोलॉजी के ऊपर कमांड नहीं होगी, एक उन्सुर के मायने हैं अनासिर का मुतरादिफ, मादा, एक उन्सुर के मायने उन्सुर मानवी, तो होना ही है वहां पर उसको, चाहे उसका मादी वजूद ना हो। तो यहाँ पर जो आग है, आप सिंपल ले लीजिए, ये मसला बायोकेमिस्ट्री का है। तो जिस वक्त हम अनासिर अनकान की तादाद पढ़ाते हैं कि एक उन्सुर का नजरिया, दो उन्सुर का नजरिया, तो वो पढ़ाते रहते हैं 13 उन्सुर के नजरिए। अरे भाई अनासिर अरबा जो है वो केमिस्ट्री का मसला नहीं है, वो बायोकेमिस्ट्री का मसला है, जहाँ के ऊपर हयात के लिए, जहाँ पर हमारी जो इनेट एनर्जी होती है वो लाइफ सब्सटेंस की एक शर्त है, जिसको हरारत गलीजिया और रुतबत असलिया कहते हैं। हरारत गलीजिया, हरारत असलिया और रुतबत असलिया वो इनहेरिट होकर आती है, वो हयात की एक बेसिक चीज है, वो बेसिक नीड है, लाइफ उसमें होती है जहाँ पर हरारत होती है, समझ गए? तो वो जो हरारत है, जो वदियत की हुई है, जो कि तबीयत की हामिल है, जो कुव्वत है, उस हरारत का नाम, उसी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो जितने भी लिविंग सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ है, उस सब में हरारत का इंफ्लुएंस पाया जाएगा, चाहे वो कंसील्ड हो या वो हरारत की शक्ल में हमारे पास हो। दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा कि हरारत जो होती है हमेशा वो एक फिजिकल फोर्स होती है, फिजिकल फोर्स, ठीक है, और वो इफेक्ट तो करती है। तो आगे मैं बताऊंगा कि उसको हमारे यहाँ कहाँ एडजस्ट होंगे। अब ये अखलाक आ गए, यहाँ से आप देखिए तौलीद अखलाक का एक तस्वुर है हमारे पास। तो ये तौलीद अखलाक का इससे फर्स्ट आया कहाँ से? एक्सटर्नल कॉजेज से, असबाब बादिया से। असबाब बादिया में ग़िज़ा, असबाब बादिया में हवा, असबाब बादिया में पानी, ये तीनों चीजें आ गई हमारे पास। और वहां पर हमारा जो है कुव्वत तबिया ने इसको जो है मेटाबोलाइज किया, और ये आगे जा रहा है बदले मातहल्लुल के तौर पर, बदल मातहल्लुल के तौर पर जा रहा है। कुव्वत तबिया का काम है, इसलिए जालिबूस कहता है कि मैंने ततारुल कुव्वा तबिया सिर्फ इसलिए तस्नीफ की कि अगर आप कुव्वत तबिया के ऊपर कमांड हासिल कर लें और इसको ठीक कर दें, और इसके असबाब के ऊपर अगर तबीब को जो है वो हो जाए महारत, ग़िज़ा और उसके हल्लुल निज़ाम के ऊपर, तो आपको दूसरे कुव्वा के अमराज की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। जो वो कह रहा है कि कुव्वत तबिया के फेल में खराबी की वजह से कुव्वा हैवानिया के और कुव्वा नफसानिया के प्रॉब्लम जो है वो वाहिद है। अब आप देखिए हार्ट अटैक हो गया, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गई, हाइपरकोलेस्टेमिया हो गया, वो सब इधर ही से ही है। तो अखलाक अब यही जो है यहाँ पर आ गया हुई खिलते लतीफ खिलते कसीब। तो जो बदले मातहल्लुल के तौर पर दोनों होंगे, इसकी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है वो आगे जाके रिफ्लेक्ट करेगी पैथोजेनेसिस में, जो मुकरार कहता है। और जो कि वहां पर 80% इनका काम है, और यही फाइल सोर्स है बदले मातहल्लुल का। तो जो जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसे ही सैंपल बनेगा। तो
तो हमें रॉ मटेरियल कहते हैं ना, रॉ मटेरियल पे देखो क्वालिटी जो है, रॉ मटेरियल कौन सा ले रहा है। तो रॉ मटेरियल पे कंट्रोल करने के लिए ग़िज़ा और उसकी वो दूसरी चीजें, फिर उसके बाद तबीयत उसको हद तक इम्कान कोशिश करती है रिफाइन करने की, लेकिन वीक से वीक होती जाती है रिफाइनमेंट। अगर आप छलनी को साफ ना करें तो बंद हो जाए। तो रिफाइनमेंट का काम तबीयत करती रहती है, और आले तबीयत क्या है, आज़ा और उनकी साथ और उनका विकास, ये बताया उसके अंदर। तो असबाब तमामिया में गिव द मास एंड एनर्जी, ये दोनों चीजें देते हैं। एनर्जी देते हैं अखलाते कसीफा लतीफा, और मास प्रोवाइड करते हैं अखलाते कसीफा। अब आप खुद देख लीजिए कि प्रोटीन वगैरह आराम से पता चल जाएगा कि मास के लिए कौन सी चीज है, वो भी अखलाते, उसको कसीफा कह दिया आपने यहाँ। और जो एनर्जाइज करते हैं एटीपी और ऑक्सीजन मिलके जो ऑक्सीडाइज होते हैं, जो कि हर वक्त जो है तसर्रुफ में आता है, वो खिलते लतीफ के तौर पे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो दो तरीके से काम होता है। तो अब अगर वहां पर ग़िज़ा में कुछ चीजें हमारी ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि तक़वियत देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बॉडी मास को बढ़ाते हैं। तो अगर यहाँ हमें ये चीज समझ में आ गई अखलाक के ऊपर काम करने के बाद, तो जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उनका आना एक चीज, और उनका न्यूट्रलाइजेशन और उसका इंदिफा। तो इसीलिए इस्तफराग और इल्तिबास की थ्योरी हमारे यहाँ टॉप पर है ट्रीटमेंट के तरीके से, कि भाई इस्तफराग कर दो, इनका तादील कर, उनको खारिज कर दो अगर आ गए। अब इसको देखिए आज़ा को कहाँ तक करिए, नोट इसमें। अब इसमें आपने देखा बसीत, आज़ाए बसीता, मुतशाबिहुल अज्जा, उसकी बेस के ऊपर आराम से बन गया कि सेल को लीजिए, सेल अरकान से चेंज कर दीजिए, वो मुमकिनुल वजूद है, वो वाजिबुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद है। हमारी थ्योरी के साथ सेल आ गया, सेल से फिर मुतशाबिहुल अज्जा आप टिश्यू ले लीजिए, फिर पहली तरकीब में मुतशाबिहुल इम्तिजाज ऑर्गन ले लीजिए। अब ऑर्गन के अंदर जो मुरक्कब ऑर्गन, उसी में क्योंकि मुख्तलिफुल मिजाज अज्जा आए हैं, वहीं पर आपको फिर वो जो है मिजाज की थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी कि इनका सबका मिजाज मुस्तवी है या मुख्तलिफ। जो असबाब में है मुस्तवी मुख्तलिफ, दो तरीके से वहां पर बयान किया गया है। वहां से आपके सिलसिला आएगा सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड द होल बॉडी। इसको ही तरकीब अव्वल, तरकीब दोम, तरकीब सोम, तरकीब चहारुम, तरकीब पंचम बताया गया। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज को तरकीब पंचम में रखते हैं। असबाब सित्ता जरूरी है तरकीब पंचम के लिहाज से, समझ गए आप? हर चीज तरकीब पंचम के लिहाज से, सेलुलर लेवल पे हम पहुंच ही नहीं सकते। होगा वही असबाब जरूरी है, गैर जरूरी है, लेकिन उसकी वो बदल सकती है, नंबर हो सकता है वहां पर हवाई मुहित की जगह कोई दूसरा है। हवाई मुहित की जगह सेलुलर लेवल पर हम असबाब सित्ता जरूरिया में नंबर रख के हवाई मुहित लाते नहीं लाते। सेलुलर लेवल पर हवाई मुहित नहीं लाएंगे, वहां पे लाएंगे रतूबत महसूरा, हिसार बंद करने वाले, समझ में? रतूबत महसूरा, वहां क्या क्वालिटीज है, और ये वाला जो कॉज होगा वो बिलवास्ता होगा, इमीडिएट होगा, और वो हवाई मुहित होगा वो अल्टरनेट बाद में एक सीरीज उसकी बन जाएगी। द सोर्स ऑफ पावर है ये अरवा है, इसको कहा जाता है। इसका भी बड़ा मामला है, और ये खिलते लतीफ में ही मिलती है बदन के अंदर जाके। खिलते लतीफ यानी वही हिस्सा नहीं है खिलते लतीफ का, शामिल रहती है, हिस्सा नहीं है, शामिल रहती है, और वहां पर इसी वजह से खून को हामिल रूह कहा गया। तो ये जौहर नसीम है, और यही जाकर वहां पर जो क्या बनती है, दो सोर्स ऑफ पावर यही बनती है। तो यहाँ नोट कर लीजिए, जब भी आप कुआ के ऊपर काम करेंगे तो तीन चीजें आपके ध्यान में रहेंगी। नंबर एक महले कुआ ऑर्गन, नंबर दो एक तो महले कुआ ऑर्गन, नंबर दो मवादे कुआ अखलाक और रूह, अखलाक और रूह, ये तीनों चीजें हो गई। अरकान मैंने बताई थी, उसमें कैसे आपको फिट होंगे अरकान। दूसरी बात ये, उस वक्त के मुशाहिदे में ये था कि सिर्फ हवा बाहर से जाती है। अब हमारे यहाँ जो रूप पे काम हो रहा है वो अंदर अरवा पे हो रहा है। उसमें हमने ऑक्सीजन भी लिया है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया है, उसको हमने अरवा को चेंज कर दिया कि अब जौहर नसीम को अलग कर दिया, वो भी रूह का पार्ट है, और जो अदर फॉर्म ऑफ गैसेज हैं उनको भी हमने लिया, वो भी कभी-कभी एनर्जी का भी काम करती हैं और जरूरी भी होती है, एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया के साथ। ये इसको नजर में बिठा के रख लीजिए। क्या आले तबीयत क्या है? तबीयत इस हमारा कहते हैं ना, तबीयत ही तबीब है, तबीब तो खादिम तबीयत है, हिमोस्टेटिस वाला मामला जितना भी है। तो यहाँ पर दोनों चीजें आएंगे, बदन के जो अफाल हैं सेलुलर लेवल से वो, और उसकी जो स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों से मिलके आले तबीयत बनता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा, ये भी देख लीजिए कि इधर आके मैं जो बताता हूँ, कुव्वत को पता नहीं क्यों कौम में शामिल नहीं किया है।
बल्कि उसको क्वा में ही रखना है। तबीयत को शुरू में पढ़ा देते हैं, कुव्वतों में जब पढ़ाते हैं तो कोरिलेट नहीं हो पाता, कुव्वतें हम शुरू करते हैं कुव्वत तबिया नसानिया हैवानिया से, जबकि कुव्वत को वहीं लाना है नीचे, और जो इब्तिदा जो करनी है तकसीम के बाद वो तबियत सही करनी है, और तबियत को सैयदुल कुवा कहना है, सैयदुल कुवा कहना है, सुप्रीम पावर जिसको कहते हैं। वो चीज जब आएगी तो अब उसके इंटरेक्शन में सब चीजें आती है। हर ऑर्गन कहीं पर भी किसी भी ऑर्गन की साख और उसका मिजाज अगर जो है तब्दील होता है तो तबीयत खराब होती है, सिंपल वर्ड में कहीं पर भी। अब ये देखिए आप, सबब मरज अर्ज, इसको भी जरा देख लीजिए। ये सबको पता है सबब मरज, सबब मरज, सबब मरज, सबब मरज है क्या? ये बेसिक फिलॉसफी में इनफैक्ट हुआ क्या था, वो हमने कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी ली थी ना। हमें पता चल गया कि हमारा जो है फिजिकल वर्ल्ड है, ये पता चल गया कि हम हिकमत तबीयी के स्टूडेंट हैं, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का मसला होता है, हमें ये पता चल गया कि साइंटिफिक लैंग्वेज में जब हम पेपर लिखेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट की बात होगी। तो सबब, अब ये सबब जो है इसके अंदर सबब जो है वो मुकद्दम होता है, पहले होता है, ये जो होता है, लेकिन उसमें ये हम भूल जाते हैं कि वहां पे जो तकसीम की है सबब की बात में, सबब यानी फाइल। अब देखिए यहाँ जरा सा अरबी जरूरी हो है जो मैंने आपको शुरू में कहा। एक होता है फाइल, एक होता है फेल, एक होता है मफूल, ठीक है ना रिजवान भाई जी? फाइल, फेल और मफूल। तो फाइल वो जो कोई काम करे, फेल जो काम हो, लेकिन मफूल असल में क्या कहते हैं मुसब्बब को, उसको छोड़ दीजिए आप इस यहाँ पर, वो तो उसका इफेक्ट हो गया। तो फाइल हो गया जो पहले हो, तो बिज़ात यानी फाइल जो है वो बिज़ात है, ठीक है। दूसरी बात, जब वो फाइल होगा तो वो अब हमने ऊपर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है फाइल बराए मरज और फाइल बिल अर्ज बराए अर्ज। क्या मतलब है? ये इसका देखिए, ये रखोगे, ये मेरा हाथ, ये फाइल बिज़ात है, यानी अपनी एनर्जी है इसकी, फाइल बिज़ात इस्तेमाल किया ये फाइल बिज़ात हो गया, ये सबब हो गया। अब अगर ये खड़ी रह गई तो सेहत पे गिर गई तो मरज हो गया, समझ गए? अब ये इसने अगर इसको भी ले लूंगी तो ये अर्ज हो गया। तो अब क्या मामला है, जो हम कहते हैं उसूल इलाज में सबब का इजाला करो, तो असल में फाइल बिल ज़ात का इजाला करना है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है फाइल बिल अर्ज का, जो हमारे ज़वाहिर में जो चीज आती है उसको कहते हैं। यहाँ पे हम जीत जाते हैं, अरे जीतेंगे भाई, बेसिक फलसफा हमारे पास एलोपैथी से हमारा पैरेलल है, हमारा कोई वो नहीं है, सब हम ही हैं। वो हम जरा सा वो कर देते हैं, येलो लाइन को अपना समझ लिया, ब्लू लाइन को इनका समझ लिया, इसी में खराब हो गया। वही क्लास में जाके हम जो गड़बड़ करते हैं, कदीम है और जदीद है, मामला खराब हो जाता है। अगर मिला के हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर वो चीज पहुंची। तो सबब बिज़ात मतलब ये तो सेल्फ डिपेंड हो, किसी पर मुनहसर न हो, हमारी बात समझ। तो वो हो गया फाइल। अब जैसे एनर्जी निकल रही है हमारी, एनर्जेटिक जो मैं बोल रहा हूँ वो सेल्फ एनर्जी सबब बिज़ात हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बीच में रखिए आप फेल को, बराए मर्ज, तो हमने तो ये पढ़ा है सबब मर्ज, यही पढ़ा है ना सर। इसको जरा सा पलट दीजिए, इसको देखिए नीचे जो ब्लू कलर में है, जहां फलसफे में इसका नाम है हरकत, मोशन। हरकत, मोशन और मुतरादिफात में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? हरकत, एक आम जबान में बताऊंगा फिर टेक्निकल बताऊंगा। हरकत, तब्दीली, काम, तगय्युर, फसाद, यही है ना, यानी हर चीज जो कि जो कुछ हो जाए, ठीक। अब इस हरकत को हमने 4 हिस्सों में ले टेक्निकल फॉर्म में, जो कि हमेशा के लिए रहेगी। अतिफा ने वो कोई पुराने हमारे अस्लाफ हमारे नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन की उनकी वो है, मैंने कहीं नहीं मिलना, उन्होंने मिलना तो नहीं किया। उन्होंने बताया 4 तरीके की हरकतें होंगी भाई, हरकतें ऐनिया, ऐसे मोशन ये है, ऐसे ये है हाथ, और हरकतें वज़िया पता ही है, मैं कि लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों से मालूम आपको सब पता। अब मसला ये है हमारे साथ कि ये जो चारों हरकतें सिर्फ नफ्स के साथ ही पढ़ाई जाती है पूरी यूनानी, इसके अलावा कहीं काम ही नहीं। ये क्या मतलब है यार? अरे भाई हरकतें ऐनिया वज़िया तो सारा ही मामला उसमें है। कहीं पर हरकतें ऐनिया है, कहीं पर वज़िया है, कहीं पे कैफिया है, कहीं पे कमियां है। म्यूटेशन हो गया, कमियां हो गया, इंसान की तबीयत के बाद अलग हो गई, है ना। अब उसके अंदर जो है ये चीज है, अब ये हिलता है अगर ऐसे करके तो ये तो ऐनिया हो गया, और ये जो अपनी जगह रह गई ये वज़िया हो गया, हार्ट की मूवमेंट हो गया।
तो मसला ये बताने का था यहाँ पर कि ये जो हरकत को आप जहन में रखिए कि असल में हरकत था वहां जिसको अतिबा ने बदला, और उसमें बदला उन्होंने तो चूंकि बरस से सेहत हमारा ज्यादा सामने है तो उन्होंने उसकी जगह बरस दिया और उसका अर्ज कर दिया, वो हम यहाँ सामने आ गया, हम उसी में मुकैयद हो गए। अदरवाइज क्या है, सबब फेल, फेल का दूसरा चीज हरकत, काम, हरकत चार किस्म की हो गई। तो ये जो हरकत हो गई वो सेहत भी होगी और मरज भी होगा। मेरी बात समझिए, अगर सेहत से मरज की तरफ आ रहा है तो असबाब सही है सेहत के असबाब, और अगर सेहत से मरज की तरफ आ रहा है तो असबाब मरज है। क्लियर हो? अब आप देखिए किस तरफ जा रहे हैं। तो अब ये, लेकिन अब नीचे देखिए कि सिर्फ मुसब्बब जो है उसको छोड़ दिए, वो अज़्ब है, वो खिल्त है, वो रूह है, जो भी एक जिस्म का मादा है। वो मुसब्बब रूह भी हो सकती है जिसपे असर हो रहा है, वो सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, वो तो मादा हो सकता है। अब देखिए इसकी चेन कैसे बनी। सबब फाइल बिज़ात बराए फेले इब्तिदा, चाहे तज़य्युद हो, चाहे इंतहा हो और इनताद हो, तो तमाम के तमाम में ये चारों चीजें लगती चली जाएंगी। अभी देखना है कि कौन सा फैक्टर कहां पे कितना। ये जरा से आप देख लीजिए, ये पूरा एक सिंक्रोनाइज मैंने बनाया है कि सबब मर्ज अर्ज बातना और खारजा के हिसाब से हमें यूनानी कहां डील करते हैं। सबसे पहले द ह्यूमन बॉडी, सबसे ह्यूमन बॉडी में ये मत तसव्वुर कीजिएगा कि चारों हाथ पैर वाला बदन। जो आपकी प्रॉब्लम हो, चाहे टिश्यू की प्रॉब्लम हो, ब्लड की प्रॉब्लम हो, सेल की प्रॉब्लम हो, वहां रख दीजिए। समझ गए? ये नहीं कि पूरा इंसान खड़ा कर देना। वो जो फिजिक्स में हम कहते हैं व्हेन ए बॉडी मूव्स, ये वही वाला जिस्म है। व्हेन ए बॉडी मूव्स, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स, व्हेन ए सेल्स ट्रेवल्स, ये वो वाला रख दिया। अब इसमें जो ह्यूमन बॉडी, तो वो पांचों तरकीब में से जोन से भी आपके सामने चीज है। उसके बाद उसका वही रहेगा कि उसके जो कंपोजिशन है वाजिबुल वजूद में, वो एयर होगी, अर्थ होगा और वाटर होगा वाजिबुल वजूद में। और जब आप इसको उनसुर वहीद में रखेंगे कैफियत में, पुराने जमाने में, तब तो आप इसको उनसुर कहेंगे, और आज आप इसको मुरक्कब कहेंगे, और इसका मिजाज जब ही बनेगा, वरना इसकी कैफियत बनेगी। उसके बाद फिर इससे बनने के बाद, वाटर से बनने के बाद, अब इसके ये जो यही मटेरियल जो है एनर्जाइज्ड होते हैं, जिसको पावर कहते हैं। ठीक है, तो इनका मटेरियल वहीं से आएगा, पावर्स, फंक्शंस एंड टेम्परामेंट। पावर्स, फंक्शन एंड टेम्परामेंट। तो फंक्शन और पावर्स और किस पे डिपेंड करेगा, तो उसका एक तारील है, टेम्परामेंट है। तो उसकी तारीफ जो है मिजाज की, वो मैं आगे बताऊंगा कि वो सेहत की मैंने 50 तारीफें अभी आपको पढ़ के सुनाई थी। तो थी टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है। टेक्निकल बिल्कुल वही है, मिजाजे मोतदिल तिब्बी। मिजाजे मोतदिल तिब्बी, जब किसी मरकब में अनासिर का तनासुब दो या दो से ज्यादा उस पे होता है, फिर होता है, ये होता है, ये तो मिजाज हो गया। जब किसी मरकब में अनासिर का तनासुब बारे कमियत और कमियत उसके मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के ऐन मुताबिक हो, तो वो मिजाज मोतदिल है। यही है ना, बस वही से। अब ये देखना है मुरक्कब आप मान किसको है। सेल को मान रहे हैं, आप ब्लड सैंपल को मान लीजिए, आप रिपोर्ट बना के दीजिए। तो आपके पास ब्लड सैंपल आ गया, उस पे नाम लिखा हुआ है, फलाना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब आपने देखा वो इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये मामला है, तो आप उसमें लिख देते। बहुत से हार्मोन ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि दैट लेडी शुड बी प्रेग्नेंट। तो वो उसके मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक है। जब किसी मरकब में अनासिर का तनासुब, बच्चा है, बड़ा है, नंबर है, आप पता चला टीएलसी जब आप करते हैं तो टीएलसी नॉर्मल, इतने नॉर्मल। तो वो जब किसी मरकब में अनासिर का तनासुब उसके मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक हो, ब्लड की विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक हो। जब वो मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक नहीं होती तो क्या होता है, एडिमा हो जाएगा, इस्तिस्का हो जाएगा, इस्तिस्का लहरी हो जाएगा। फिर देखेंगे कि इसके सोर्स क्या थी, है ना, कि अज़ू में कोई प्रॉब्लम थी जो कि महज हुआ, या मादे में कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, रिसोर्सेज में क्या प्रॉब्लम। अब देखिए असबाब मुक़व्विमा इसके वही हैं, अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, क़ुव्वा व अफ़आल। ये एक बार आपके बन के आपके सामने आ गए। अब इसके बाद असबाब ज़रूरिया हैं जो मेंटेन रखते हैं, चाहे वो सेहत हो तो उसके भी असबाब यही हैं, सुनिए समझ लीजिए, और मर्ज़ के भी यही। असबाब सेहत और मर्ज़ एक ही। पहला है मकान व ज़मान, जरा सा इसको नोट कर लो, हवाए मुहीत लिख दिया है लोगों ने, और फिर ट्रांसलेट करने वालों ने हवा कर दिया।
ये तो है स्पेस है, ये पूरी स्पेस जहाँ पे मैं रहता हूँ, मकान और जमान, यानी मुझे कितना वक्त इस कमरे में हो गया और कितना बड़ा ये कमरा है, क्या है, उसके हिसाब से मेरा टेम्परामेंट काम कर रहा है। और मैं बाहर चला जाऊंगा तो टेम्परामेंट बदल जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसा रखिए कि फीटस इनसाइड द वॉम कितने टाइम रहता है, क्या उसकी सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम रह लेगा तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसका वक्त बढ़ रहा है, प्री मैच्योर हो जाएगा तो प्रॉब्लम आती है। तो पूरी थ्योरी आपके पास है मकान और जमान की, आप पेपर बना लीजिए रेफरेंस देके कि हमारे पास वक्त और मकान की थ्योरी है जो ये कहती है कि जब तक ये बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद द टाइम नहीं होगा, एसेंशियल्स में है। उसके बाद अरकान आपको बता दिए, ह्यूमन एलिमेंटोलॉजी, फिर टेम्परामेंट बता दिया, उसका कंपोजिशन वही रखिएगा दिमाग में, मतलूबा अफाल खवास के मुताबिक, मतलूबा तो मतलूबा अफाल खवास टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, पेशे वराना तौर पर चेंज होते हैं, हैबिट्स में चेंज होते नहीं होते, लेकिन टाइम चेंज होती है नहीं। फिर उसके बाद अखलाक है, अखलाक के अंदर भी ये दूसरी बहस है, अखलाक का चैप्टर के लिए पूरे अलग से वो चाहिए कि किसको अखलाक मानना है, कब मानना है, क्या कब नहीं मानना है, कौन से फ्लूइड मानना है। कुव्वतें मैंने आपको बताई थी कि ये सबब फाइल हैं, और ये अगर मानती है तो सूए मिजाज मानती है, अगर सबब गैर मानती है, कैसे? इतनी देर में मैं आपसे जो बोल रहा हूँ किसी की गिरानी जरूर हुई होगी, आपने समझा क्या? अगर सर भारी हो गया तो कोई चीज नहीं गई, और मेरा जब पीरियड खत्म हो जाएगा तो मुझसे अच्छे स्पीकर आ जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये है सूए मिजाज सब। फिजिकल इंटरेक्शन या जो कि आपका हवा से रहता है, यानी इंटरेक्शन ना हो, मादा इंडक्ट ना करे बदन में, ना तो मादे को बदन में इंडक्ट करो ना एलिमेंट को, मादे को नहीं छेड़ो। उसके बगैर अगर मादे में कैफियत में तब्दीली हो रही है, चाहे वो एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे वो उल्फिस हो रही है। और एक बात बता दूं आपको, सूए मिजाज की वही वाली डेफिनेशन, सूए तरकीब और सूए मिजाज को साथ रखिएगा। अब जैसी धूप पड़ी तो वासोडाइलेटेशन हो गया, नहीं हो गया, और जैसी हटी तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो, उसको हटा दी। एक आदमी को खबर दी कि भाई वहां पे वो हादसा हो गया आपके बच्चे के साथ, तो एकदम हाथ पैर खुल जाएंगे नहीं? अरे नहीं वो आपके साथ नहीं हुआ तो खुश हो जाएगा नहीं? इसको कहेंगे सूए मिजाज से साथ। एक और बता दें लास्ट में, सूए मिजाज मुफरद और मुरक्कब, हमेशा याद रखिए मुफरद तो मुरक्कब तो ठीक है, क्योंकि एक फाइल और एक मफूल लगेगा। हार याबिस हार रतब, बारिद याबिस बारिद रतब, ये कुल्लिया है, इससे हटना नहीं। मसला ये मुफरद का क्या है, हार याबिस बारिद रतब, वहां असबाब के ताल्लुक से था, यहाँ अलामात के ताल्लुक से, कि अगर जवाहिर में वो चीज ज्यादा आ रही है, अगर हार ज्यादा आ रहा है तो उसको आप ले सकते हैं, लेकिन मंतकी तौर पर उसके अंदर भी मफूल जरूर लगा होगा या भी, लेकिन फाइल जो उसका होगा, बिज़ात जो चीज होगी वो है, बिज़ात जो चीज है वो हार, बिज़ात जो चीज है वो बिज़ात जो चीज है वो बस इतना। तो सबब और मरज इसका पूरा मामला है। और हम देखते हैं हमारा सबका क्या है गोल, जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया के जितने भी मॉलेज हैं, तशखीस हो तजवीज़, इमीडिएट एंड अल्टीमेट, और हम सब बराबर हैं, कोई हमारा तफरीक नहीं है। मॉडर्न पैथोलॉजी भी अपनी है, हम भी उन्हीं के ही। रिसर्चर साइंटिस्ट जो होते हैं वो कुल्लियात ही पढ़ते हैं, वो ग्रेजुएट नहीं करते, एमबीबीएस नहीं करते, वो यूएमएस नहीं करते, वो साइंटिस्ट नहीं होते, बीएससी नहीं लेते, वो बाय माइंड होते हैं। देखो न्यूटन देखो कैसा उसने देख लिया, है ना? वाटसन देखो कैसा उसने देख लिया, आइंस्टाइन देखो कैसा उसने देख लिया। तो जिनके ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि दिन पर जिनके दिमागों को अल्लाह ताला वार करता है और उनके ऊपर जो अपने हालत खलक के असबाब को खोल देता है, और जिनके ऊपर अल्लाह ताला रूम के दरवाजे खोल देता है और जिनके लिए दुआएं कर जाती है रब्बिश लली सदरी, उनके लिए जो होता कोई साइंटिस्ट इंशाअल्लाह मिले। तो हमारे ऊपर आपके ऊपर क्योंकि यू आर अंडर टीचर्स, मैं भी एक इतना तालिब इल्म हूँ, तो हमें इससे ये नहीं करना कि भाई हमें कैसे करना। 40 बच्चे का कोई भी सवाल उधर से आ सकता है, सबने कहा शिरानी साहब ने सवाल तो करेगा, तो जवाब देने के लिए लॉन टेनिस देखिए है ना, तो सर्विस पहले जो करता है वो एडवांटेज में रहता है, क्योंकि वो किधर मारेगा पता नहीं, जवाब देने वाला उसको, तो जवाब देने वाला जो सर्विस का रिटर्न जो अच्छा करता है वही जीतता है। ठीक है, तो यही मामला है। इसी मुख्तसर सा जो मेरा था, मुझे बीच में जरा सा सर आके बैठ गया तो मैं जरा सा मुतदल हो गया। सर के आने से जरा सा गड़बड़ तो हो ही जाती है, जिसने पढ़ाया है पकड़ना हो जाए वो होगी नहीं, तो मुझे माफ कर लीजिए सर अगर कुछ गलत हो गया हो, और जो भी कुछ हुआ है तो हमने फिक्स करने की कोशिश की है छोटे से उसमें,
और काम हमारा उम्र तबिया ही है, वही इसका रूल है। आप लोग भी उम्र तबिया से ही काम शुरू करिए, वहीं से मिजाज वहीं से सूर्य मिजाज आएगा। और उसके बाद जो है मॉडर्न 45 नथिंग, दैट इज द न्यू थिंग्स जो हमारी कुव्वत बासरा वहां तक पहुंच गई, जो वहां पर नहीं था। हिस्ट्री नजर में रखिए, हिस्ट्री नजर में रखिए कि जो हमें उस वक्त दिख रहा था आज वो हमें दिख रहा है। और एक बात याद रखिए, देखने का मतलब ये नहीं है कि आंख से देखें। जब आप कहती हैं हम सालन सालन वालन बनाते हैं, अम्मी देखना क्या इसमें नमक ठीक है, तो क्या अम्मी अपने सालन नाक में डालती हैं? चखती है। तो मतलब इदराक का मतलब ये है कि जो भी आपको उसको हम देखने में, तो जो भी हमें कुछ देखता है, आज हम जो है पहले एक्सरे पे डिपेंड थे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड आ गया, आज सीटी स्कैन आ गया, कल को एक चश्मा ऐसा आ सकता है कि हाँ भाई ये हार्ट इनका और आएगा। 20 साल पहले हम कहते थे ऐसा कैसे हो जाएगा कि मोबाइल में हमारी तस्वीर दिखेगी। अच्छा, मोबाइल आने के बाद अगर हम रहते भी सही है, क्या मालूम किस वक्त कोई जो है हमें वीडियो कॉल कर ले और हमारा हुलिया दिखने लग जाए। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट तो लगे हुए हैं, मतलब एडवांसेस तो ये जो एडवांसमेंट जो आ रहे हैं किसी वक्त सर उस पर भी रखेंगे नब्ज बोलो बराज पर, तो ठीक है, फिर उस पर नब्ज के ताल्लुक से गौर देंगे कि नब्ज को कैसे कन्वर्ट करा। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। Thank you very much, sir, for enlightening us with your immense knowledge. Now, I would request Professor M.M. Mohammed Amin, Chairman Department of Ibn Amrast, to present a memento to Professor Ashraf Ali. आप खड़े होना ही मोमेंट है। पढ़ाया था मेरे साल में 84 में है, 81 में 83 में हुआ था, 85 में हम उनके सबके तालिब इल्म थे। हम लोग सब टीचर है, कभी कभी हम बहुत अच्छे स्टूडेंट खुद से मिल जाते हैं, हम कहते हैं उसका फर्क हमें हासिल होता है। एक आध जगह मुझे और भी ऐसा मौका मिला है जहाँ पे जब मैं कहता हूँ वो मेरे शागिर्द है, वो मुझे यूं मुड़ करके देखते है ना। जब आप इस्लामी का हेड अगर वो मेरा शागिर्द हो और मैं किसी को कहूँ कि फला वो मेरा शागिर्द है, मतलब जब शागिर्द है तो फिर है बोलूँगा ना, तो वो एक बार मुझे यूं मुड़ के देखते हैं आपको, और ऐसे यहाँ भी है। ये शुरू से बहुत अच्छे ग्रुप थे, सब आदमी अपनी मेहनत से पढ़ता है, सलाहियत अल्लाह ताला जरूर दी है, लेकिन हम जितना उसको पॉलिश करेंगे उतना आगे। ये कम से कम मैं जरूर इनके बारे में कह सकता हूँ, जितनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी है इन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल। मारते से है, याद रखना। ये कॉज एंड इफेक्ट है मारते से भाई, ये जो चीज है ये मारते से है, तो हमेशा मारते थे और